So guys, first before going to guys, now we are at the bridge of Good morning guys from Paro, from Bhutan, from hotel Thim Dorji Resort. So आज का जो व्यू है आपको इसके पीछे आज का सुबह का जो व्यू है आपको देख के मज़ा आएगा. So stay tuned guys in 3, 2, 1. You can see the lovely view out here of our lovely property which is hotel Thim Dorji. Morning views are really wonderful guys. और ऐसे नेचर में ऐसा चाय पीने में जो मज़ा है ना एकदम अलग है. when you are connected to the nature where you can see lovely mountains and really wonderful water river flowing around us and villages are also nearby. It's really wonderful. So मज़ा आ गया. देखा, Bhutan is so wonderful country guys. Whenever you get time, whenever you are free, definitely visit to Bhutan. This should be into your bucket list guys. So guys, just came out of the room and just near to the restaurant I just came out. So just restaurant के बाद अपने अच्छा खासा एक व्यू देखा. ये जो पीछे देख रहे हैं, दिस इज द रेस्टोरेंट आवाज जहाँ पे अपने कल भी डिनर खाया एंड कल भी स्नैक्स खाया जैसे कि अपने शॉर्ट्स पे देखा था. एंड दिस इज द लवली वैली आउट हियर. मेरा फेस इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज दिस सन इज कमिंग टू द माई डायरेक्शन. सो अगर मैं इस ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाऊंगा तो मेरा फेस अच्छा खासा क्लियरली दिखेगा. अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा तो मेरा फेस जो है थोड़ा डार्कर साइड में दिखाएगा. बट कैमरा में आई थिंक सो अगर मैं कैमरा को उस तरफ दिखाऊंगा तो आपको वैली अच्छा खासा दिखेगा. एकदम अलग स्टाइल का बिल्डिंग है थीम डॉर्जी में. सो गाइस, इन द भूटान का हम लोग को विटनेस करने मिला है फ्लाइट. जैसे कि देख रहे हो वाइट कलर का जो देख रहे हो दैट इज द फ्लाइट ऑफ भूटान. फाइनली अपने को मिला. विल गेट टू विटनेस दैट ऑल्सो गाइस. सो अभी हमारे टेबल पे आ गया ब्रेकफास्ट टेबल आ चुका है उधर. So the first thing which you see, we got the puri. Food is out here. This is I think so something different, which there is something besan ka some items out there. As you can see, this is the one, and we got the coffee also, and as always poha also our favorite. We get it out poha, and it's going to be really amazing. So guys, it's time to leave for Cholela Pass now. So usually people when they come to Bhutan they choose Tiger Nest, but we have chosen Cholela Pass because I have been visited to Tiger Nest many times. But this time let's explore Cholela Pass because it is known that it is the highest memorable pass of Bhutan. So let's explore it. I'll let you know about some of the information about the Cholela Pass guys. So guys, first before going to the Cholela Pass, we have halted at the Paro airport. View we have halted here because there is some takeoff going on at 11:10. So because of this, we have been waiting for to flight to see of taking off and so on. As you can see, this is the beautiful Paro International Airport, and in Bhutan, this is only the one international airport. In Bhutan, there are I think so 2 airports, which is one of that is domestic one, which is Bumthang Airport, but this is one of the international airport, which is Paro Airport, Paro International Airport. I've been also visited many times from this airport in 2016, but now after 2018 I've been traveling to Bhutan by road. So right now, as you can have a look of Paro International Airport, it's so wonderful. It will be a really mesmerizing view. So stay tuned guys. So let's enjoy the view of lovely Paro Airport. So as you can see guys, the one just behind of the aircraft is the terminals of the airport, Paro Airport, and after that you can see the aircrafts out there. I think so there is one Druk Air, 2 of them are Druk Air, and one of the aircraft is Bhutan Airlines. So and just behind of that, I don't know how much the camera can capture, we can get that is the Paro Zong. As you can see out there, Paro Zong is also wonderfully out there.
So let's see by when we can get witness the really lovely scene. And this is the runway of Paro International Airport. As you can see, in the middle, that is the international airport's runway. And really waiting for to see the plane getting taking off or landing, whatever is possible. Let's have a look, guys. So guys, now we are heading towards the Jalila Pass because we were waiting at the airport, and due to that the 11:10 flight was cancelled due to the weather condition or what is it, due to some technical fault, it might be or something. So because of this we are now heading towards the Jalila Pass. आपको जैसे दिख रहा है गाइस, ये तो रनवे ऑफ पारो का है. सो हम लोग थोड़ा सा हा वैली एज वेल एज towards Jalila Pass जा ही रहे थे, तो we got to witness one more lovely view of दिस पारो एयरपोर्ट का रनवे. जैसे दिख रहा, थोड़ी देर पहले अपन देखी इधर आपको टर्मिनल्स वगैरह एयरक्राफ्ट वगैरह दिखा रहे थे. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द रनवे. जैसे दिख रहे हो, really it's a dangerous airport. It is considered as the guys, we just got it, the flight to which is getting take off. So finally we got to witness. Wow, see the view, guys. I don't know how much the camera can do the justice. Wow, yeah, we got to witness. And this is Bhutan Airlines, I guess. Wow, wonderfully. So when I go, I know you'll follow. So guys, the flight which you saw in this earlier footage before this was going towards the Dubai. The destination of the flight was from Paro to Dubai. So how we were lucky enough to get to witness this really lovely flight. And as in the morning also, as you saw from our hotel lobby, and this is also something different we got to witness this, guys. As we got to witness the red mud of Bhutan out here. So usually हम लोग जब कोंकण साइड या गोवा साइड में जाते हैं तब हमको ये रेड मट्टी देखने मिलता था, बट here also we got to witness the red mud as you can see out here, guys. Here also if you see very lovely mud out here, guys. So guys, now we have made it to the Bhutan's highest motorable pass, which is known as Jalila Pass. So इधर तक आने के लिए तो आपको रोड थोड़े से zigzag वाले है, एज वेल एज अच्छा खासा ठंडा भी हो जाता है एज पर पारो, और ये थोड़ा सा दूर भी है. और ये जो हाइट है इसका, जो Jalila Pass का, इट इज़ नोन एज 3988 के अबव द सी लेवल है. तो इसके लिए इतने अच्छे खासे व्यूज़ देख ही रहे हो आप. अच्छा खासा देख रहे हो, और मज़े वाले आ ही रहे व्यू. जैसे कि देख रहे हो मेरे पीछे फुली ग्रीनरीज, एंड शायद से थोड़े बहुत आपको हिमालयन रेंज भी दिखते रहेंगे जब आप विंटर सीजन में आओगे ना, गाइस. जब आपको स्नो ऑन द वे जब आप क्लाइंब करोगे टुवर्ड्स Jalila Pass, जब भी दिखने मिलेगा. एंड एज वेल एज जहाँ पे अब आपको क्लाउड्स दिखते हैं वहाँ पे भी आपको देखने मिल सकता है. दैट इज़ हिमालयन रेंज. सो वही हम लोग अभी देख रहे हैं, गाइस. सो रियली लवली प्लेस. बट यहाँ तक आने के लिए आपको थोड़ा सा डेढ़ से 2 घंटा लगता है आप इधर आने के लिए, क्योंकि रोड्स आर लिटिल बिट ऑफ नैरोइश. तो इसके लिए सो यूजुअली पीपल टाकसांग जाते टाइगर, ये तो बहुत रेयरली पीपल who are not interested in hiking can come here and enjoy the Jalila Pass. This is also the beauty of Bhutan, guys. And Bhutan में जैसे कि ये बहुत बुद्धिस्ट कंट्री में फेमस है ये. She is just turning around this, as you can see out here. She is enjoying the really lovely weather, lovely vibes out here. यही होनी चाहिए लाइफ पे, कि जब भी आप आ रहे हो किधर भी अगर आप इंजॉय नहीं कर पाओगे तो दैट्स अ रियली वर्स्ट थिंग. सिनेमैटिक शॉट्स लेने का टाइम आ चुका है. इन 3, 2, 1 go.
और यहाँ पे कैसा कि वेदर इज रियली सुपर कूल। हर एक जगह एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक अलग ही वाइब्स मिलती है। तो यहाँ से अगर आप एक और चीज़ गाइस, यहाँ से आप हाजोंग भी जा सकते हैं, मतलब हा वैली एक प्लेस है इधर भूटान में, वहाँ भी जा सकते हो जैसे कि देख रहे हो। जैसे कि देख रहे हो, जैसे मैंने बोला आपका हाजोंग का डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से नज़दीक ही होगा। तो फ्रॉम चलेला टू हाजोंग जो है हा वैली, it is 26 kilometer from Chelela Pass. So I think so this is the road for going towards the Ha Valley, and the way which you are seeing this way, we just came from Paro place, Ha Valley के लिए इधर से the roads are very very scenic, very very beauty of it, and the project जिसने प्रोजेक्ट बनाया, रोड जो बनाया है उसका उस टाइप कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट डनक करके कोई है यार, so he has made the roads of here I guess. So really wonderful, एक अलग ही वाइब से, मतलब चलेला पास आना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मेरा फर्स्ट टाइम है चलेला पास, एंड सी द वेदर गाइस, द वेदर इज विद अस टुडे एंड आवर साइड, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। कैमरा में इतना जस्टिस नहीं देगा जितना आपको इधर बाई और नेकेड आइज आपको देखने मिलेगा। सो यस देख ही रहे हो क्या मज़ेदार व्यू, क्या मज़ेदार वाला व्यू है। सो गाइस अपन अभी जा रहे हो ऊपर की तरफ, विच इज द टावर के उधर ही जैसे कि देख रहे हो आप, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। कुछ देर पहले अपन उधर की नीचे थे, एंड नाउ गोइंग टुवर्ड्स नियर द टावर। इट्स रियली अमेजिंग टू गेट इन दिस व्यू, और वेदर बहुत ठंडी होती जा रही है, पर मज़ेदार आएगी, और इधर से भी नज़ारे देख ही सकते हो, इट्स वंडरफुल है। इधर से अपन ने अपना चढ़ाई स्टार्ट की, और नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अपवर्ड्स गाइस, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग। तो चलिए अपन ये चढ़ाई चढ़ लेते हैं। ऐसे अपन अच्छे खासे चढ़ाई चढ़ चुके, इतना पता नहीं चलता कि इतना हाइट पे हो, अब जब चढ़ोगे ना तो पता चलता है, क्योंकि आपकी थोड़ी बहुत क्या सांस फूलने लग जाती है। तो वो एक चीज़ है गाइस, फिर भी अपन ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, और पहुंचने के बाद जो नज़ारे आते हैं ना गाइस, वो मैं अपनी वाइफ को आपको बोलूँगा कि कैसे आती है नज़ारे। तो प्लीज़ शो द व्यू आउट हियर। You can see out here, we got to know the kettles of Bhutan. वाओ यार, सी अगर इधर ड्रोन होता ना, हम ड्रोन उड़ा देते थे, बस मजा आता ना। सो गाइस आपको जो रोड जैसा जो चीज़ें देख रही है गाइस, वो वही रोड से अपन अभी ऊपर आए थे। सो इतना थोड़ा कर्विश रोड जो है, इतना एक एक टर्न में आपको ना इतना कर्विश रोड आते हैं ना इसमें, तो इसी रोड से अपन अभी जस्ट ऊपर की तरफ आए थे। सो गाइस जैसे कि नज़ारे देख ही रहे हो, इतना लवली सा, इतना मज़ेदार वाला है। मतलब आई नो आपको मैंने नीचे से भी ये सेम व्यू दिखाया, बट आप ऊपर आते हैं ना, इसका अलग ही नज़ारे आते हैं, मज़ा आ जाता है। इधर आते ही थोड़ा आपको ये वैली थोड़ा खाली मिलेगा, थोड़ा सा अलग ही स्पॉट है ये गाइस। यू विल बी सराउंडेड विद द लवली हिमालयस, इफ योर लक इज गुड, एंड क्लाउड्स तो है ही, जैसे कि देख रहे हैं, वी आर सराउंडेड विद द ब्लू क्लाउड्स आउट हियर, एंड लवली mountains out here mountains are fully greeneries out here। and अगर ये वाले साइड पे भी अगर बात करें तो इसमें भी नो डाउट बेशक इसमें भी इतनी अच्छी खासी लग रही है। और वो जो मॉनेस्ट्री देख रहे हो गाइस, वहाँ पे पता नहीं कितना दूर से आपको कैमरा में समझ रहा है कि नहीं, उधर किधर अपन भी अभी जाने का प्लान तो है, बट अभी देखेंगे कैसा है। इट्स टाइम टू लिव दिस वाला व्यू, आई होप सो यू लव द व्यू। इधर भी इतने अच्छे खासे नज़ारे आपने देखा सिनेमैटिक शॉट्स में, एंड एज वेल एज आपने ये वाला भी व्यू देख ही लिया होगा सिनेमैटिक शॉट्स में। सो इट वाज अ रियली गुड प्लेस। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो थोड़ा सा मैनेजेबल करना पड़ेगा गाइस आपको। सो गाइस अब हम नीचे तो आ गए, अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स दी मॉनेस्ट्री जो हमने आपको दूसरे साइड से देखा। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी कि यहाँ पे सीढ़ियों के जैसा पत्थर बनाया गया, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे खासे क्लाइंब कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, आई रिक्वेस्ट माय वाइफ टू शो हाउ द स्टेप्स। तो गाइस जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसा कि एक पत्थर जैसा एक अच्छा खासा बना है स्टेप्स की जैसा। अगर आप उस पहाड़ियों में हम देखें तो वहाँ पे कुछ ऐसा सरफेस नहीं बना है, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा सरफेस बनाया गया है।
और यहाँ पे कैसे कि अगर आप थक जाते फॉर इन केस तो यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो. दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन हैव अ रेस्ट इफ यू आर टायर्ड. एंड यहाँ पे नज़ारे भी इतने अच्छे से खासे एज आई शोइंग यू. इट्स रियली वंडरफुल. और वो जो ऊपर जो मोनेस्ट्री बोलते हैं या जो है वहाँ पे अपने को जाना है. मोनेस्ट्री को उधर ही जाना है. मोनेस्ट्री और चौथे. आई एम रियली कंफ्यूज. प्लीज फॉरगिव मी गाइस फॉर दिस. सो ऑन दैट ओनली वी आर गोइंग अप. नेचर की वादियों में घूमना बहुत मज़ा आ रहा है. तो चलिए गाइस ऊपर जाके मिलते हैं. सो गाइस इनकेस अगर आप इधर आते हो सो आपके साथ है ना एक फेस मास्क भी लेके आना, क्योंकि वो हवा बहुत ज़्यादा है तो वो आपकी नोज़ वगैरह को जो हो सकता है कवर अप कर सकते हैं. सो इसके लिए आप जब भी आ रहे हो इस प्लेस में चलेला पास में आप अपना फेस मास्क लेके आना, तो ताकि क्या हवा आपके बॉडी में मतलब कि नाक वाक में ना जाए. इट विल बी बेटर. और मौसम इतना जल्दी बदल गया, बारिश गिरने की टाइम आ चुकी है. सो गाइस यहाँ पे कितने सारे घर बने हुए हैं, पत्थर के घर जैसे कि देख रहे हो. इट्स रियली अमेजिंग. यहाँ से कैसे इतना अमेजिंग सा बड़ा घर जैसा है. आप जैसे देख रहे हो अलग अलग टाइप्स के है. ये पूरे पत्थर ये सब है अलग ही टाइप्स की. ये मज़ेदार वाला है. इट्स रियली अमेजिंग टू सी दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स आउट हियर गाइस. सो ऑलमोस्ट देयर टू द मोनेस्ट्री गाइस. सो जैसे देख रहे हो यहाँ से कितना अच्छा खासा दिख रहा है. बस ये बैम्बू क्रॉस करना है और पहुंच जाएंगे फिर कंपाउंड. सो गाइस जैसे कि देख रहे हो माय वाइफ इज ऑन टॉप देयर. शी इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर मी. हम लोग क्या है खाली ब्लॉग बनाते आ रहे तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग गया. अदरवाइज हम लोग भी अभी ऊपर पहुंच ही जाते थे टूवर्ड्स द टॉप गाइस. और गाइस ये कुछ कंपाउंड ऑफ द मोनेस्ट्री का नियर बाय जैसे कि देख रहे हो. एंड मोनेस्ट्री जस्ट मेरे एकदम पीछे यहाँ ही पे है हमारा चलेला पास का मोनेस्ट्री आउट हियर जैसे कि देख रहे हो. और अपने को उस तरफ उधर तक जाने के लिए अपने को एक रास्ता जाना है, वो मैं दिखाता. सो गाइस ये कुछ कंपाउंड ऑफ ये है जहाँ हम लोग को उस तरफ जाने के लिए. सो यहाँ से अपन जाएंगे राउंड एंड राउंड. यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ भी है आई गेस, तो ये वाली जाएंगे. स्टेयरकेस आउट हियर. एंड यस this is the staircase which we found right now. Really wonderful guys. And here we have made it to this guys. So guys it's time to leave the lovely monastery and towards up चलेला पास को भी लीव करने का टाइम आ गया है. सो अपन निकलने वाले हैं. और यहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा है तो आई नीड टू कवर माई हेयर्स ऑल्सो, माई फुल हेड्स एंड ईयर्स बोथ. सो जब भी आप आ रहे तो अपना कान टोपी भी लेकर आना गाइस, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ही चलती है तो वो ये ध्यान में रख देना गाइस. So guys it's time to now leave this lovely Chelela Pass right now. So now we'll be moving towards the Paro town. So I think so it will take 1.5 hours more drive. So let's rest for some time and this I'll catch you after some time. So when I go, So guys finally we have made it to the Paro. So Paro में पहुंच गए guys. And पारो में आते ही हम लोग को थोड़ा सा वार्मर तो मिला एज वेल एज टेम्परेचर. एंड एज वेल एज वी हैव halted at the restaurant which is known as the Biryani House. As you can see just behind of me, the restaurant is known as the Biryani. This is located just behind the main market. जो पारो का जो मार्केट है ना गाइस उसके बस पीछे ही लोकेटेड है ये वाला चीज़. एंड उसके अपोजिट में आपको इफ़ यू वंडरिंग व्हाट इज दिस, इज दिस जोंग or is this a monastery or is this something else? So मैं आपको बता देता हूँ कि what is it. So actually this जो market आप मेरे पीछे देख रहे हो this is actually a market which is vegetable का market वगैरह जो है वो है guys. और यहाँ पे आप देखोगे ना सब buildings, ये वाला अपना बिरयानी हाउस वाला बिल्डिंग छोड़ के if you see this all kinds of buildings are all into traditional manner. और ये इतना बड़ा लगा ना मार्केट कि आपको मैंने बता दिया कि दिस इज़ द मेन मार्केट आउट हियर. सो गाइस मैंने बहुत बार विजिट किया पारो बट दिस इज़ द माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम बिन विटनेसिंग लिटिल समर वाइब्स आउट हियर. अभी गर्मी लग रही है मुझे पारो में. नहीं तो पारो में अगर आप यूजुअली आओगे ना इधर यूजुअली आपको
ठंडी महसूस होगा, बट यहाँ आते ही मुझे गर्मी का एहसास हो गया. So guys, our meal has arrived, which is known as chicken biryani out here. So here we get really big thali we get chicken biryani out here. And अगर आप यहाँ देखोगे तो this is रायता and this is I think so salt. ये बिरयानी जो है अभी अभी आई है, चिकन बिरयानी है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट का नाम है बिरयानी हाउस है, तो हम लोग ने सोचा कि वाई नॉट टू ट्राई चिकन बिरयानी. तो अभी ये सब खाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे गाइस. सो गाइस, हो गया अपना अच्छा खासा लंच. सो वापस आ चुके अपन अपने पारो जोंग के बाहर. जैसे कि देख रहे हो ऑन माई ईयर यू हैव पारो जोंग. एंड वाई वी हैव कम हियर बिकॉज टू ट्राई आउट सम ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ भूटान. सो इसके लिए अपन अभी इधर ये शॉप में आया टू ट्राई आउट भूटान का लोकल ड्रेस. बिकॉज भूटान में आकर अपन लोग अगर कल्चरल ड्रेस नहीं पहनेंगे तो इट वॉन्ट लुक नाइस. सो इसके लिए अपन थोड़ा सा ट्रायल के लिए आ गए और जोंग के इधर ही शायद फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करेंगे. सो स्टे ट्यून गाइस. So when I go, Guys, now we are wearing the traditional dress of Bhutan. So it is known as, this is known as go as per the male, and the female it is known as Kira as per traditional dress. So we are going to click some photographs, videographs near this zone. I hope you will love it, and please share and subscribe guys. So now we will be going inside this bridge guys. अभी अपना फोटोग्राफ जो है मैं इधर शेयर कर दूंगा. इंस्टाग्राम का जो भी पोस्ट है मैं इधर शेयर कर दूंगा, और फोटोज़ जो भी है अच्छे खासे अपन इधर जोन के बाहर खींचे वो उसके अंदर का भी अपन अभी आपको शेयर कर देंगे. सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द ब्रिज ऑफ द पारो जोंग गाइस. सो लेट्स गो. सो इन पारो व्हेनेवर यू एंटर गाइस, आपको ये सब टाइप कल्चरल टाइप्स का ये सब मिलेगा देखने को. जब भी आप पारो की तरफ एंट्री करोगे तो अच्छा खासा अपने को देखने मिल जाएगा. बट ना अभी ब्रिज की तरफ से आपको थोड़ा सा इधर से राइट लेना है. एंड नाउ वी आर अबाउट टू रीच द ब्रिज आउट हियर ऑफ पारो जोंग. एंड नाउ वी हैव मेड इट टू द जोंग. Guys, now we are at the bridge of Paro Zong. So earlier we were somewhere on the roadside, as you can see. I don't know how much the camera is doing the justice. There somewhere we were around there, and now at the bridge, and you can see the Zong is just behind of me here somewhere. You can see the Zong out here. So yesterday we had visited the Zong of Paro. So now today we are at the bridge of Paro. जैसा आपने रोड साइड में देखा, अपना व्यू देखा था, तो सिमिलरली वैसे ही कल का वीडियोस पे हमने आपको दिखाया था कि जोंग, हाउ द जोंग लुक्स लाइक. सो आई होप सो यू लव द शॉट्स. So guys, it was a really lovely time of wearing this dress out here. So how did you like wearing this? We are looking so good and pretty. So pretty good. Both We both are looking so amazing. I hope so you love the vlog, love the must try this traditional dress. should try definitely at Paro. You will get at Paro itself, so you'll definitely love this kind of dress. For solo also you will get it, for the male also. You don't need to have a
couple or something, you will get for the male also as well as for the female also. If you're solo also, no worries. If you're solo also, you will definitely get it. So what is this dress called? Let me ask my wife if she remembers. For girl it is Kira and for boy it is Go. Go. Right. Yes. So yeah, Baku is, if you know that Baku is in Nepalese language, but this in the Bhutanese language it is known as Go and Kira. So that's the reason out here. And the Paro Valley is really beautiful. That's my favorite valley, my favorite place of Bhutan. Really wonderful and really peaceful country out here. So now we'll be returning back to our shop from where we rented out our clothes. We just rented out this clothes out here, so that's the reason, guys. We have to look out there. So we just rented out the dress out here, guys. It was a really amazing feeling out here. Yesterday only we were about to try, but due to the bad weather conditions we could not try out of this. So इसके लिए हम लोग ने अब भी ये वाला clothes जो है try out किया है. So guys, the shop from which we hired our this renting out clothes is from Pema Chotin Handicraft, which is just opposite of lovely Punakha Zong. As you saw, this lovely Punakha Zong is just opposite of this shop. So guys, अच्छा खासा अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ भूटान था, खीरा एंड गो पहन के अच्छा लगा रहेगा. इतना हेवी रहता ना गाइस वो कपड़े, बाप रे बाप. इट वाज सो डिफिकल्ट टू वेयर द क्लोथ्स, बट फाइनली अपन ने कैसा वो पहन के बाद में वो थोड़ा सा हल्का लग रहा है अभी. आई डोंट नो हाउ द पीपल हियर वेयर इट. सल्यूट टू देम. So really salute for them. Each and every day they wear and they go out and do their daily work and all. Very salute for them and thumbs up for them. And as you can see, this is the beauty of our lovely Paro Zong. Really beautiful. आई नो कल के ब्लॉग में भी दिखाया था, बट कल बारिश थी और आज धूप है, तो इसके लिए आपको क्लियरली पारो जोंग जो है दिख रहा है. इट्स रियली लवली टू सी पारो जोंग, टू विटनेस पारो जोंग गाइस. सो गाइस, आपको कितना पता नहीं कितना जूम इन. पारो जोंग के ऊपर आप जो देख रहे हो दैट इज़ द म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम ऑफ पारो. अगर आप जाते हो, अगर पारो आते हो तो यू कैन डेफिनेटली विटनेस दैट जोंग. आई थिंक सो द एंट्री फीस अराउंड 300 to 350 के अराउंड कुछ पर पर्सन का एंट्री फी है. So we are at one of the store at Paro Market, guys. I know आपको Paro Market का दिखा दूंगा मैं थोड़ी देर में सीन. So we are just shopping something which is comparative to India. कैसे क्या सामान सिमिलरिटीज़ है. अभी अपने जो सेक्शन में आई थिंक सो दिस इज द किड्स सेक्शन जहाँ पे उनको ये डाइपर्स वगैरह है. तो वही है गाइस. अभी ऐसा गलत मत सोचा, अभी जो प्लानिंग है खाली ऐसा घूम रहे हैं हम लोग, अभी तक फ्यूचर प्लानिंग हुआ नहीं है गाइस, तो इसके गलत मत सोचना उसके बारे में. सो ये सब खाली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स टाइप लाइक नॉर्मली जैसे कि आप शैम्पूज वगैरह या नो सो हम दिखते हैं वैसा भी यही है गाइस. सो हम देखना. सो दिस इज़ द मार्केट आउट हियर. दिस इज स्मॉल जनरल स्टोर टाइप्स ऑफ मार्केट. वी आर जस्ट केम आउट टू एक्सप्लोर इट. सो ये सब भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं. जैसे थोड़ा बहुत इंडिया के प्रोडक्ट के हिसाब से है, बट एज वेल एज थोड़ा बहुत इधर लोकल प्रोडक्ट्स भी है. आई डोंट नो व्हाट इज दिस. दिस इज इफ यू नो दिस, व्हाट्स दिस. So so I have no actually idea what to buy. Really confusing to buy anything. जो भी जैसे अभी अपन अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं. अंजलि का जो दिमाग है फ्रिज के अलावा किधर जाता नहीं है मेरी वाइफ का. पता नहीं क्यों. what attracts her from this. really wonderful. सो दिस इज द मार्केट जनरल स्टोर. बट जैसा अपना डी मार्ट होता है ना, सेम थोड़ा सा वैसा ही. नॉट एग्जैक्टली डी मार्ट, अपने थोड़ा स्मॉलर वर्जन अपना सुपर मार्केट जैसा होता है अपने घर के आजू बाजू में, वैसे थोड़ा स्मॉल सा सुपर मार्केट यू कैन से इट एज. मतलब जो आपको रोज लगता है वैसा टाइप. इसका चॉकलेट ये वो छोटा सा सुपर मार्केट जैसा है, जैसे अपने घरों में रेगुलर जो सामान लगता है वैसे वाले मार्केट ही है. तो हमने कुछ इस तरह के सामान खरीद लिए. तो मेरी वाइफ को और क्या क्या खरीदना तुमको बेबी? उसको ना अभी फ्रिज का कुछ भी खरीदो ना वो अलग ही है. उसको तो हर एक चीज़ चाहिए रहता है. पता नहीं क्या लिया उसने. अभी क्या लिया तुमने? कुछ अलग ही है. प्राइसिंग इज ऑलमोस्ट द सेम एज पर INR. एज यू नो द
नेगोट्रियम। सो वही है गाइस। सो गाइस दिस इज़ द पारो मार्केट इन द इवनिंग वाला मार्केट आप लोग अभी आए हैं। कल आफ्टरनून को आपने मार्केट देखा था। सो नाउ वी आर एट द इवनिंग वाला मार्केट ऑफ पारो, जस्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स आउट हियर एंड सो ऑन। सो अब अपना फर्स्ट परचेज हो गया फ्रॉम भूटान, विच वी परचेज्ड इट। तो हमने भूटान के लोकल स्टोर से परचेज किया प्रिंसेस। ये है। और यहाँ पे करेंसी का टेंशन नहीं है, इंडियन करेंसी आर एक्सेप्टेबल हियर, सो वो एक टेंशन नहीं है। सो ATMs कुछ कई UPI चलते, कई UPI नहीं चलते, वो एक इशू है इधर। तो इट्स बेटर टू कैरी कैश विथ यू गाइस, ताकि क्या होता है कि आपको बाद में इधर ATM के लिए भटकना ना पड़े। तो वो एक चीज़ है। हाँ कि नहीं प्रिंसेस? हर जगह थोड़ा बहुत कैश या तो कार्ड चलता है। अगर आपके पास भूटान का कुछ UPI है या कुछ है तो उससे एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एनीवेयर। और ये सब चीज़ें ना थोड़ा बहुत मंदिर, ट्रेडिशनल मंदिर हर जगह आपको दिखाई देती है। अब पारो हर भूटान में, नॉट सॉरी पारो, हर जगह आपको सी दिखाई जाती है। सो रियली एक्सप्लोरिंग ब्यूटीफुल मार्केट ऑफ पारो आउट हियर। क्या मस्त लग रहा है पारो मार्केट आउट हियर मतलब। और ये वाले लाइन पे जो देख रहे हो ना, मोस्टली यहाँ पे होटल्स वगैरह जो ये वाले लाइन पे, और ये वाले लाइन पे आपका हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह या तो स्टोर जैसे आप जनरल स्टोर्स वगैरह, सुपरमार्केट्स, ये सभी दिखेंगे ये वाले मार्केट में। सो गाइस एक और चीज़ मुझे इस मार्केट के बारे में, मतलब भूटान के बारे में पता चला, नॉट ओनली मार्केट। इनकेस आपकी गाड़ी उधर खड़ी है, सपोज लाइक आपकी गाड़ी इधर खड़ी है और आपको मेरी तरफ आना है इस तरफ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। इंडिया में कैसा होता है कि यू कैन मेक अ यू टर्न, बट यहाँ पे भूटान में यू कैन नॉट मेक अ यू टर्न बिकॉज इट्स अगेंस्ट द रूल। आपको आगे जाके एक सर्कल आएगा, वहाँ से यू टर्न मार के देन यू हैव टू कम फ्रॉम हियर। अगर आप डायरेक्टली अगर यू टर्न मारोगे देन यू विल बी पेनलाइज्ड, यू विल बी फाइन्ड। बेटर टू फॉलो द रूल्स, वेदर आप इंडियन कार भी लेके आओगे ना, फॉलो द रूल्स। आगे से आप यू टर्न नहीं मार सकते हो, यू टर्न मार के आगे से देन ही विल द कार विल कम टू पिक यू अप। दिस इज़ द रूल एंड रेगुलेशन। और यहाँ पे आपको कितने सारे पार्किंग स्पॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं। आपको विद इन द पार्किंग स्पॉट्स ही आपको पार्किंग करनी पड़ती है। देयर इज़ अ पार्किंग फीस ऑल्सो, दैट इज़ वेरी गुड आउट हियर। क्या ताकि क्या पार्किंग का ज़्यादा झंझट ना हो। पार्किंग का स्पॉट्स भी है, आपको विद इन द बॉक्स जो है, विद इन द बॉक्स से आपको इधर पार्किंग करनी पड़ती है। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स करोगे तो उसके लिए भी आपको एक फ़ाइन है। तो भूटान में क्या है, हर एक चीज़ की एक छोटी छोटी फ़ाइन है। इसके लिए भूटान जो है सिस्टमेटिक माना जाता है ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में। So guys, we have made it to our hotel once again, and now this is our guide for today, because from tomorrow our tour will end for Bhutan. So actually the guide will come to the Phuentsholing, but our bro has some work in the Thimphu, so another guide will join us and he will drop us to the Phuentsholing. We'll definitely miss you. Sure, sir. It was a really great tour. I really had a good time with you. And Same here. I'll be in touch with you. Definitely. So thank you so much for showing us so much of beautiful Bhutan. Thank you so much. I hope in future again we'll meet and again we'll do again tour of Bhutan, something different part of Bhutan. Sure, sir. Thank you so much. All the best for your life. Yes. So have a safe travel tomorrow. Thank you so much. You too have a best wishes for your futures and all. Thank you so much. Thanks. Bye bye guys. So guys, पारो की इस खूबसूरत मार्केट में अपना लवली सा व्लॉग एंड करते हैं। That's it with today's video. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to hit the like button, share this video, subscribe to my channel, and please press the bell icon. Comment down below your thoughts regarding this vlog. अगर पसंद नहीं आया तो you can hit the dislike button too. Till then, stay safe, stay happy, spread happiness, and do whatever makes you happy. And I'll catch you in my next lovely vlog. Most probably कल हम रिटर्न जाने वाले टुवर्ड्स इंडिया वाया फुनसलिंग बॉर्डर, जहाँ से हमने भूटान में एंट्री किया। तो कल का व्लॉग भी आ जाएगा गाइस। और कुछ चीज़ें जो छुट्टी है फुनसलिंग में
जब डे 1 में हम लोग आए थे भूटान में एंट्री किया, तो वो चीज़ें भी आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में प्रोबेबली हम शेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून गाइस। सो मैं मिलता आपको नेक्स्ट लवली व्लॉग में। और मौसम तो जैसे कि देख ही रहे हो, एंड द टाइम राइट नाउ इट इज़ 6:40 एज पर भूटान टाइमिंग, एंड इन इंडिया इट इज़ 6:10 राइट नाउ। सो विद इन सम टाइम आई थिंक सो डे लाइट विल ऑल्सो गो अराउंड। अभी सनसेट तो हो ही चुका है, अब खाली डे लाइट थोड़ा सा बचा है, वो भी अभी कुछ ही देर में चले जाएगा गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर। और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर देना गाइस, यह है मेरा आईडी गाइस। थैंक यू।